السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آج سے ایک نئی ویڈیو شروع کی ہے جس کے اندر ہم عوام الناس کے بہت سارے مسائل لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ وہ مسائل جن کا جاننا ہر کسی آدمی کو ضروری ہوتا ہے۔ نماز کے مسائل ہو یا پانی کے مسائل ہو یا وضو کے مسائل ہو، خواہ کسی بھی چیز کے مسائل ہو جن کا جاننا زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ مسائل لے کر ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے آپ سے ادباً درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور ہمارے اور ہمت کو، حوصلے کو بلند کریں، کیونکہ مسائل جانے بغیر کوئی بھی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہر بات سے مستغنی ہو سکتا ہے، لیکن مسائل شرعیہ کے لازمی علم سے نہ کبھی کوئی مستغنی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ طہارت کا معاملہ ہو یا نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو یا حج کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا نکاح اور طلاق کا معاملہ ہو یا وراثت کا معاملہ ہو، بہرحال مسائل سے واقفیت حاصل کرنی ناگزیر ہوگی۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان اسلام کے مطابق نہ تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے حقوق حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ دینی مسائل سے غافل نہ رہے، اور جب بھی کوئی بات پیش آئے تو اگر اس کے علم میں نہ ہو تو اس کو جاننے کی کوشش کرے، خواہ زبانی جاننے کی کوشش کرے یا کہیں لکھا ہوا پڑھ کر جاننے کی کوشش کرے، بہرحال جاننے کی کوشش ضرور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھ لو جانکار لوگوں سے اگر تم کو علم نہ ہو۔ آج کل بہت ساری برائیاں یہ بھی چل رہی ہے اس معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں، کہ کوئی بھی کسی کام کو سیکھنے کے لیے اگر جائے، مثلاً کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، کم سے کم ڈاکٹر اس کو 2 سے 3 سال تک اپنے پاس رکھ کر کے پھر ڈاکٹر بنائے گا۔ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے اگر نکلے گھر سے تو اس کو سیکھنے میں وقت لگے گا، لیکن ہم آج کل یہ دیکھتے ہیں اپنی مساجدوں کے اندر کہ اگر کوئی بھی حضرات کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، دوسرا آدمی کہنے لگے کہ مثلاً وضو کا مسئلہ ہے کہ ایسا کرنے سے وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، تو اس کے لیے کوئی بھی حضرات یہ رائے نہیں دیتا کہ امام صاحب سے جا کے پوچھ لو، بلکہ اپنی طرف سے کھٹ سے مسئلہ پیش کر دیتے کہ یہ وضو ٹوٹ گئی۔ تو اسی لیے کوئی بھی اپنی طرف سے مسئلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں سبھی عالم کے مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بھی مسئلہ پیش نہ کریں، دین کے اندر کسی بھی بات کو پیدا نہ کریں، بلکہ جو بزرگوں نے، جو ہمارے علماء اکرام نے کتابوں کے اندر لکھ دی ہے یا بتا دی ہے، صرف ان پر ہی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے چلتے ہیں مسئلے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کے اندر وضو کا ذکر کہاں آیا ہے۔ تو دیکھیے آیت وضو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا حکم اس آیت کے ذریعے دیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو، یعنی کہ نماز کی طرف جانے لگو، تو اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو کوہنیوں سمیت، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو
अपने पैरों को भी टखनों समेत धो, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो सारा बदन पाक करो। यानी कि अगर नापाकी की हालत में हो तो पहले सारे बदन को पाक कर लो। और अगर तुम बीमार हो या हालत सफ़र में हो, या तुम में से कोई शख्स इस्तंजे से आया हो, या तुमने बीवियों से कुर्बत की हो, फिर तुमको पानी ना मिले तो तुम पाक ज़मीन से तयम्मुम कर लिया करो। यानी कि अगर पानी नहीं है तो मिट्टी के ज़रिए तयम्मुम कर लो, लेकिन फिर भी नमाज नहीं छोड़नी। यानी अपने चेहरों और हाथों पर हाथ फेर लिया करो। उस ज़मीन पर से अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं कि तुम पर कोई तंगी डाले, लेकिन उसको यानी अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि तुमको पाक साफ रखे और ये कि तुम पर अपना इनाम तमाम फरमाए, यानी कि तुम पर अपना इनाम भी पेश करे। दूसरी बात, ईमान के अंदर ये भी जगह जगह उलमा इकराम भी फरमाते हैं, मसाजिदों के अंदर अइम्मा हजरात बयान करते हैं, वो भी कहते हैं कि पाकी आधा ईमान है। पाक और साफ रहना आदमी को बहुत ही ज़रूरी है। हमारे इस्लाम के अंदर है कि पाकी आधा ईमान है, यानी आधा ईमान एक तरफ और सिर्फ पाकी एक तरफ। इसलिए सभी हजरात जहाँ तक हो सके अपने आप को, अपने बदन को पाक रखें। आइए बताते हैं पानी के मसाइल। पानी एक अनमोल नेमत है। पानी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने जा बजा इस नेमत का तज़किरा फरमाया है। एक जगह इरशाद फरमाया, वहुवल्लज़ी अरसलर रियाह बुशरम बैना यदै रहमती व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा लिनुहय्यिया बिही बलदतम मैतम व नुस्क़ियहु मिम्मन खलक़ना अनआमम व अनासिया कसीरा। और वही है कि अपनी बाराने रहमत से पहले हवाओं को भेजता है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला, कि वो बशारत लेकर आती हैं, और हम आसमान से पानी बरसाते हैं जो पाक साफ करने की चीज़ है, ताकि उसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन में जान डाल दें और अपनी मखलूक़ात में से बहुत से चौपाओ यानी जितने जानवर हैं और बहुत से आदमियों को सैराब कर दे। यानी कि बारिश पड़ेगी, आदमी और जितने जानवर हैं, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, सब पानी पी करके अपनी प्यास बुझाए। दूसरी जगह आयत में इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिह, और मैं तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि उस पानी के ज़रिए से तुमको पाक कर दे। ये पानी जहाँ प्यास मिटाने का काम करता है, वहीं ज़ाहिरी और हुक्मी नजासत दूर करने का भी सबसे बड़ा ज़रिया है। इसलिए इस नेमत की कदरदानी और शुक्रगुजारी ज़रूरी है। पानी अपनी ज़ात के एतबार से पाक है या नहीं है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें से चंद किस्में जो किस्में हैं वो हम आपके सामने पेश करते हैं। तहारत और नजासत के एतबार से पानी की कुछ किस्में हैं, जिसमें नंबर 1 ताहिर मुतहिर, यानी वो पानी जो खुद भी पाक हो और पाक करने की सलाहियत भी रखता हो। यानी कि ऐसा पानी जो खुद भी हर एतबार से पाक है और उससे वुज़ू किया जाए, गुस्ल किया जाए या कपड़ा धोया जाए, वो उसको भी पाक कर सके, तो उसको कहते हैं ताहिर मुतहिर। जैसे माए मुतलक, जिसके साथ कोई दूसरी चीज़ शामिल ना हो, मसलन दरिया और नहर या चश्मे या बारिश का पानी। नंबर 2 ताहिर मुतहिर मकरूह, जैसे वो कलील पानी जिसमें पालतू बिल्ली, खुली हुई मुर्गी और चूहे वगैरह मुंह डाल दे। उसका हुक्म ये है कि अगर दूसरा गैर मकरूह पानी मौजूद हो तो उस पानी को इस्तेमाल करना मकरूह तंज़ीही है, लेकिन अगर उसके अलावा
कोई और पानी मौजूद नहीं है तो उससे तहारत हासिल करने में कोई हरज नहीं है। नंबर 3, ताहिर गैर मुताहिर, यानी वो पानी जो बजाते खुद पाक हो लेकिन वो हदस को पाक करने की सलाहियत ना रखता हो। एक तो वो पानी है जो पाक भी करता है और पाक है भी, दूसरी किस्म जो भी बताई। तीसरी यह है कि पानी है, पाक है, लेकिन उसके अंदर इतनी सलाहियत और इतनी ताकत नहीं कि वो दूसरी चीज को पाक कर सके। मसलन आप उनसे गुस्ल करने लगे, नहीं होगा, वुजू करने लगे, वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं ताहिर गैर मुताहिर, यानी पाक तो है लेकिन दूसरे को पाक नहीं कर सकता, यानी उससे दोबारा वुजू और गुस्ल मोतबर ना हो। यानी कि जो पानी पाक है लेकिन पाक नहीं कर सकता, उससे आप वुजू करने लगे, वुजू नहीं होगा। अगर आप गुस्ल करने लगे, गुस्ल भी नहीं होगा। माइल मुस्तामल, जिससे किसी हदसे हुक्मी को ज़ाइल किया गया हो, नीज इबादत की नीयत से वुजू पर, वुजू या खाने के लिए हाथ धोने से टपकने वाले पानी का भी यही हुक्म है। यानी कि आपने अगर ताहिर गैर मुताहिर पानी से वुजू कर लिया तो और वही पानी किसी चीज में भर के आप दोबारा उससे वुजू करने लगे तो वुजू नहीं हो सकता, उससे वुजू किया हुआ वुजू मोतबर नहीं होगा। अलबत्ता माए मुस्तामल से नजासत हकीकिया ज़ाइल की जा सकती है। मसलन नापाक कपड़ा धोया जा सकता है, पूरा मसला है यहाँ कि उससे वुजू या गुस्ल नहीं कर सकते। नजस, यानी वो पानी जिसमें कोई नजासत मिल गई हो, अब अगर वो माए कलील है तो पड़ते ही पूरा पानी नजस हो जाएगा। यानी कि अगर कोई नापाकी उसमें गिर गई तो पूरा पानी नापाक हो जाएगा। और अगर माए कसीर है, यानी बहुत ज़्यादा पानी है, तो नजासत का हुक्म उस वक्त होगा जबकि नजासत का असर, जायका, रंग या उसका मज़ा पानी में जाहिर हो जाए। नंबर 3, मशकूक पानी, ये वो पानी है जिसमें गधे या खच्चर ने मुंह डाला हो। उसका हुक्म यह है कि अगर दीगर पाक पानी रहते हुए उससे वुजू वगैरह ना करे और अगर दीगर पानी मौजूद ना हो तो उससे वुजू कर ले, लेकिन बाद में तयम्मुम भी कर ले। यानी ये वो पानी है कि अगर आपके पास में पानी तो मौजूद है लेकिन उससे अच्छा अगर पानी मिल जाए तो आप उसी से वुजू करें, और अगर ना हो तो उस वक्त के लिए वुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा पानी आपको पाक पानी मिल जाए, ताहिर व मुताहिर, तो फिर दूसरे पानी से ही वुजू करें। आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हम